Hello everyone, this is Shanti Sirsat from Information Technology Department of Pravin Patil College of Diploma Engineering and Technology. Guys, in previous session we start our chapter, that is chapter number 5, file operations, and in this we already learn about the file stream classes, that is input file stream and output file stream, and also we learn about the operation which we perform on the file, that is open the file and close the file. In today's session I will I start the next operation, that is remaining two operation, that is read data from the file and write data into the file which is permanently available in your device. Guys, we already learned that if in previous all the lectures we perform the operation which is on temporary memory. Okay, right? Input output operation, that is input and output, read operation and write operation, but using cin object and cout object. Okay, so normally which is we perform the operation using standard input output devices, but now here we want to perform operation on the file which is available, which is existing in your device. Okay, or we already perform the open operation and close operation on the file. Now here we start with the next operation, that is reading from and writing to a file, means read operation and write operation, on the file. Check here, I create here. Okay guys, here we perform operation on file object, so here we need upstream.h header file, because in that upstream.header file there are three classes. One is input file stream class, another one is output stream class, and third one is upstream class, that is file stream class. Means to read data from the file we need input stream class, to write data into the file we need output stream class, OF stream class, and if you want to perform both the operation we also use upstream class of upstream.h header file. Okay, so here in main I first created the object, that is new file object of upstream class, and now I perform the open operation. Here I open the file, that is new file, name is new file write dot text file dot txt, and in which mode? In read mode. Means here I want to perform read operation, I want to take the input from the file, that is new file write file. नाम क्या है फाइल का? न्यू फाइल राइट, एंड उस पर हियर आई ओपन द फाइल इन मोड. इन मोड मीन्स रीड मोड, मीन्स सिर्फ यहाँ पे जो मैं फ़ाइल ओपन कर रही हूँ वो फाइल मैं सिर्फ रीड कर सकती हूँ, राइट नहीं. इन मोड मीन्स रीड मोड में मैं फ़ाइल ओपन कर रही. गाइस, अभी आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपको कोई भी फाइल रीड करना है तो ऑब्वियसली दिस फाइल मस्ट बी अवेलेबल इन योर डिवाइस. अगर कुछ भी डेटा हम लोग को रीड करना है, कोई भी बुक रीड करना है, तो ऑब्वियसली वो बुक मेरे पास होना चाहिए. वो फाइल अगर मेरे पास नहीं होगा, बुक नहीं होगा, तो मैं रीड कैसे कर सकती हूँ? सो if you want to perform the read operation, first check that the file is available or not. Okay, so here I check the file is available or not using if loop. If not new file, not new file underscore write. Okay, file name wrong हो गया यहाँ पे. If exclamatory mark means if not new file underscore write, new underscore file underscore write, तो मैसेज क्या डिस्प्ले करना है हम लोग को? सी आउट no such a file is available in your device. Okay, else अभी हम लोग को क्या करना है? सब डेटा जो है वो रीड करना है, रीड करके हम लोग को उसको डिस्प्ले भी करना है. ओके, सो
रीड करके हम लोग को डिस्प्ले करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर ch। वाइल नॉट न्यू फाइल डॉट एंड ऑफ द फाइल, मतलब जब तक न्यू फाइल अगर हमने ओपन किया है और हम लोग को रीड करना है, तो जब तक एंड नहीं हो रहा है फाइल का तब तक मुझे उसको क्या करना है, रीड करना है। नॉट न्यू फाइल डॉट एंड ऑफ द फाइल मीन्स जब तक वो न्यू फाइल का एंड नहीं हो रहा है तब तक मुझे क्या करना है, न्यू फाइल इंसर्शन ऑपरेटर ch मीन्स न्यू फाइल से एक एक कैरेक्टर मुझे रीड करना है, एक एक फाइल क्या करना है, मुझे रीड करना है, इनपुट लेना है। न्यू फाइल से जो भी इनपुट है वो मैं किस में ले रही हूँ, ch वेरिएबल में ले रही हूँ। एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे मैं वो डिस्प्ले कर रही हूँ। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ch मीन्स यहाँ पे मैं वो क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ। देखो वो स्टेटमेंट मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। भाई द न्यू फाइल, जब तक न्यू फाइल डॉट एंड ऑफ द, न्यू फाइल का एंड नहीं हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, न्यू फाइल को रीड कर रही हूँ। न्यू फाइल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ch। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक बार मैं वापस बताती हूँ आपको। जस्ट चेक हियर एक्सट्रैक्शन, यस चेक हियर द लास्ट स्टेटमेंट यूजिंग स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, यूजिंग स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर वी कैन राइट इंफॉर्मेशन टू अ फाइल। हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके वी कैन राइट इंफॉर्मेशन टू अ फाइल। एंड यूजिंग स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वी कैन easily read information from the file। using extraction operator we can easily read information from the file। तो हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, देखो हाँ, न्यू फाइल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो न्यू फाइल में से जो भी डेटा है वो हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इजीली रीड कर रहे हैं। और रीड करके किस में डाल रहे हैं, ch कैरेक्टर में डाल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यूजिंग सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर हम वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस पे हम वो डिस्प्ले कर रहे हैं। आफ्टर दैट रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद राइट ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं, नॉट राइट ऑपरेशन, डिस्प्ले कर रहे हैं, सी आउट डिस्प्ले ऑपरेशन। ओके, देन हम फाइल को क्या करें, यूजिंग क्लोज फंक्शन क्लोज करें, दैट इज़ न्यू फाइल डॉट क्लोज। ओके, अभी हमने रीड ऑपरेशन किया। देखो in this example we read the file that generated in previous example, that is new file write, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था फाइल उसी को हम अभी क्या करें, रीड करें। टू रीड द फाइल वी नीड यूज़ इन मोड, इन मोड यूज़ करें, दैट इज़ रीड मोड, इन मोड, iOS scope resolution operator in the above example we print the content of the file using extraction operator। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू हमने वो रीड किए और ch कैरेक्टर में रख के बाद में वो सी आउट से हमने डिस्प्ले किए। द आउटपुट प्रिंट्स विदाउट एनी स्पेस बिकॉज वी यूज़ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सो इफ़ यू वांट टू रीड मोर देन वन कैरेक्टर वी नीड टू यूज़ गेट लाइन विथ कैरेक्टर एरे टू प्रिंट द होल लाइन एज इट इज़। टू प्रिंट होल लाइन एज इट इज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ हियर वी परफॉर्म द राइट ऑपरेशन ऑन द फाइल। ओके, सॉरी गाइस, मैंने पहले ही बताया कि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन देन फाइल एग्जिस्टिंग इज़ मस्ट, फाइल अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है। बट इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन इफ़ द फाइल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं रहेगा, एग्जिस्टिंग नहीं रहेगा, तो फाइल पहले क्रिएट होगा एंड देन राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, चेक हियर अपस्ट्रीम न्यू फाइल ऑब्जेक्ट देन न्यू फाइल डॉट ओपन न्यू फाइल अंडरस्कोर राइट डॉट txt। अगर फाइल रहेगा तो उसी में राइट होगा, अदरवाइज फाइल क्रिएट भी हो जाएगा। सपोज़ फाइल क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ गए, एग्जिस्टिंग में भी अगर उसी सेम नाम का फाइल रहेगा तो फिर क्या होगा, फाइल क्रिएशन फेल्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगा। न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद हम उसमें अभी कुछ राइट कर रहे हैं, राइट टू द फाइल। ओके, राइट कर रहे हैं किसके थ्रू, टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, न्यू फाइल इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी
विच यस यस इंसर्शन ऑपरेटर, लर्निंग फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ये मैसेज इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू न्यू फाइल के ऑब्जेक्ट को पास होगा। ओके, मीन्स नाउ दिस कंटेंट्स राइट इनटू दैट फाइल। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यू फाइल डॉट क्लोज किया हुआ है, न्यू फाइल को क्या किया है, क्लोज किया हुआ है। वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एक ही लाइन में आ गया कमेंट में, वो न्यू फाइल डॉट क्लोज, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन नेक्स्ट लाइन, दैट इज न्यू फाइल डॉट क्लोज। एंड देन इंटीजर मेन फंक्शन है, दैट्स वाई हियर द मेन फंक्शन रिटर्न द इंटीजर वैल्यू दैट इज 0. Okay, extraction operator is used to read data from the file and insertion operator is used to write data into the file. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यू फाइल, इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन मैसेज दैट इज लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ये मैसेज क्या होगा, इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू हमारे फाइल में राइट हो जाएगा। ओके, here we first create a new file using open function and then we wanted to send output to the file, so we use iOS out, that is out mode में, write mode में उसको open किया। as given in the program, information typed inside the code after the insertion pointer goes or pass to the output file. Okay, next, डिटेक्शन ऑफ द एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, इज फाइल, दैट इज एंड ऑफ द EOF. You can detect when the end of the file is reached by using the member function, that is EOF, that is end of the file. Okay, it is a integer function, it is a integer function, it returns non-zero when the end of the file has been reached. Okay, when the end of the file has been reached, otherwise it returns 0, otherwise it returns 0 means अगर फाइल का एंड नहीं है, ओके, इट रिटर्न्स नॉन ज़ीरो व्हेन एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन रीच्ड। नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा कब, एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन रीच्ड, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। देखो यहाँ पे इनपुट फाइल स्ट्रीम एफ इन फाइन fin डॉट ओपन मास्टर iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन, दैट इज़ रीड मोड, कौन से फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी मोड। ओके, वाइल नॉट फाइंड डॉट एंड ऑफ द फाइल, नॉट फाइंड नहीं आएगा, FIN आएगा, नॉट FIN डॉट एंड ऑफ द फाइल एज लॉन्ग एज एंड ऑफ द फाइल इज़ 0। ओके, एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द फाइल एंड इज़ नॉट रीच, देन प्रोसेस द फाइल। ओके, अगर जब तक एंड नहीं मिल रहा है तब तक फाइल क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा। मीन्स एक तो रीड, यहाँ पे रीड मोड में ओपन किया तो ऑब्वियसली हम फाइल को क्या करेंगे, रीड करेंगे बाइनरी मोड में। इफ़ फाइल डॉट एंड ऑफ द फाइल, दैट इज़ इफ़ नॉन ज़ीरो, ओके, एंड ऑफ द फाइल हो गया तो वहाँ पे फिर क्या होगा, एंड ऑफ द फाइल रीच्ड, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। मतलब जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल रहा है तब तक हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ रीड ऑपरेशन अदरवाइज राइट ऑपरेशन, तो वो प्रोसेस हो जाएगा फाइल पे, और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हम लोग को मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, एंड ऑफ द फाइल रीच्ड। ओके, टू फाइंड आउट end of the file or to detect the end of the file, we use integer function, that is EOF, end of the file. Why this function's return type is integer? Because it returns integer value, it returns non-zero when the end of the file has been reached, otherwise it returns 0. Okay, check here the file modes. This is the last point of your chapter, that is file mode. In mode, to open file in read mode, default for input file stream. Then out, open the file to perform the write operation on the file, and this is the default mode of OStream, output stream class. Check here, in is a mode which is perform read operation on the file, or which is used to open the file in read mode, and this is default mode for input file stream class, IF stream class. And out, that is open the file
to perform write operation on the file, and this is default mode for output file stream class. Then binary mode, that is open the file in binary mode. APP, that is appends that open the file and append all the outputs at the end of the file. Then ATE, open the file and moves the control to the end of the file. At the end of the file, moves the control at the end of the file. Then truncate, remove the data in the existing file. Non-create, open the file only if it already exists. Open the file if it is already exist. No replace, open the file only if it does not already exist. Okay, non create, ओपन द फाइल ओनली इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स यहाँ पे फाइल अगर ओपन नहीं रहेगा, इवन इफ हम राइट मोड भी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ओपन नहीं होगा. सिर्फ वो कब ओपन होगा, इफ़ द फाइल ओनली ऑलरेडी एग्जिस्ट. अगर नॉट क्रिएटेड रहेगा तो वो ओपन नहीं होगा. नो रिप्लेस, ओके, ओपन द फाइल ओनली इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट. इफ इट डज नॉट ऑलरेडी exist. All these are file modes. Mostly here we use in, out, append and binary mode. Okay, this is important question for board exam for 6 marks. Write down or explain at least 6 file modes, at least 4 file modes. That is in mode of input stream class, to read a file, to open file in read mode. Out, open the file to write content into the file, and this is the default for output stream class. Then open file in binary mode, open the file and append the content at the end of the file. Then ATE, that is open the file and directly moves the control at the end of the file. Then truncate, that remove all the data available in existing file. No create, ओपन द फाइल ओनली इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. अगर फाइल अवेलेबल है तो ही ओपन करो, अदरवाइज वो अभी क्रिएट मत करो. ओके. नो रिप्लेस, ओपन द फाइल ओनली इफ इट डज नॉट ऑलरेडी exist. Okay, sorry, this is the last point of your chapter number 5. Okay guys, if you have any doubt regarding these file modes, regarding the read operation or write operation, okay, I will solve your doubt in live session. Thank you.